A very good morning, students. So, after exams, this is our first class, and I am very much disappointed to tell you that just leaving 2 to 3 students, rest of the whole class, whole 11th class was not able to do note making. आपकी note making बहुत ज़्यादा ख़राब थी. मतलब it was not कि उसको कंसीडर ना किया जाए. जस्ट मुझे याद है कि 3 या 4 आंसर शीट्स ऐसी थी जिसमें एक प्रॉपर नोट मेकिंग थी. बाकी बच्चों को पता ही नहीं था कि नोट मेकिंग में क्या करना है. समरी लिखी है तो समरी में भी किसी ने पूरा का पूरा पैसेज लिख दिया है. अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 1-2 दिन क्लास अटेंड की थी, तो जो मैंने क्लास में बताया था उन्होंने फॉर्मेट ही लिख दिया था नोट मेकिंग का. सो मुझे समझ नहीं आता दैट यू आर क्वाइट मैच्योर स्टूडेंट कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मार्क्स फ्रॉम सच काइंड ऑफ फुलिश थिंग्स. So this video I am making just let you know how to make note making. It's very easy. मैंने पहले ही बोला था कि बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है इसमें. आपको समझने की ज़रूरत है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. द मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट मेकिंग इज़ दैट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू रिमेंबर द होल लॉन्ग टेक्स्ट. एक लंबा रीडिंग टेक्स्ट जो है वो याद करना पॉसिबल नहीं होता. सो हम अपने ब्रेन में एक ओवरलाइन बनाते हैं, एक मैपिंग करते हैं हर चीज़ की. वी जस्ट टेंड टू रिमेंबर पॉइंट्स, सर्टेन पॉइंट्स, अ सिंगल पॉइंट फ्रॉम अ सिंगल पैरा. तो हमारी ब्रेन की वर्किंग इस हिसाब से होती है. सो टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम रीडिंग दिस पैराग्राफ एंड आई हैवंट रीड इट अर्लियर. मैंने इसको पहले रीड नहीं किया है. दिस इज़ पैसेज 9. आई हैव दिस बुक एंड आई एम जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट. आई एम सो जस्ट टाइम भी कंसिडर करिएगा आप लोग को कि कितना टाइम रीडिंग में लगा है और कितना टाइम इसकी मैपिंग करने में लगा है. ओके, लाइक फर्स्ट पैरा इज द वर्क ऑफ द हार्ट कैन नेवर बी इंटरप्टेड. द हार्ट्स जॉब इज टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड flowing through the body. All the body cells need a constant supply of oxygen, especially those in the brain. Brain cells live only 4 to 5 minutes after their oxygen is cut off and death comes to the entire body. The heart is a specialized muscle that serves as a pump. This pump is divided into 4 chambers connected to by tiny doors called valves. The chambers work to keep the blood flowing around the body in a circle. So first 2 paragraphs are about heart. Okay, at the end of each circuit, veins carry the blood to the right atrium. The first of the 4 chambers, its oxygen has been used up. It is on its back to the lungs to pick up a fresh supply to give up the carbon dioxide it has accumulated. तो अभी तक हमें ये समझ में आ रहा है, ये जो पैराग्राफ है ये बॉडी के बारे में है, बॉडी ऑर्गन, जिसमें कि हार्ट, बेसिकली हार्ट के फंक्शन, उसकी वर्किंग को बताया जा रहा है. Next, from the right atrium, the blood flows through the tricuspid valve in the second chamber, the right ventricle. The right ventricle contracts when it is filled, pushing the blood through the pulmonary artery which leads to the lung. In the lungs, the blood gives up its carbon dioxide. Chamber is filled. It forces the blood through the mitral valve to the left ventricle. From here, it is pushed into a big blood vessel called aorta and sent round to the body by way of arteries. Heart disease can result from damage to the heart muscle, the walls of the pacemaker. If the muscle is damaged, the heart is unable to pump properly. If the valves are damaged, blood cannot flow normally and easily from one chamber to another. And if the pacemaker is defective, the contractions of the chambers will become uncoordinated. Until the 20th century, doctors did not care to touch the heart. In 1953, all this changed. After 20 years of work, Dr. John Gibbon of the USA had developed a machine that could take over temporarily from the heart and lungs. Blood could be routed through the machine bypassing the heart so that surgeons could work inside it and see what they were doing. The era of open heart surgery had begun. In the operating theater, it gives surgeons the chance to repair or replace a defective heart. Many patients have had plastic valves inserted in their hearts when their own were faulty. Many people are being kept alive with tiny battery operated pacemakers. None of these repairs could have been made without the heart lung machine, but valuable as it is to the surgeons, the heart lung machine has certain limitations. It can be used only for a few hours at a time because its pumping gradually damages the blood vessels. ओके, सो ये जो वीडियो है, जो रीडिंग की है, ये हमारी 5 मिनट की हुई है और उससे पहले मैंने आपको आपके पेपर अटैम्प्ट के बारे में भी कुछ बताया था. सो हार्डली मुझे ऐसा लगता है कि 3 मिनट्स लगे इस पैराग्राफ को रीड करने में. सो ओनली 3 मिनट्स एंड नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ 5th पैरा तक हार्ट की वर्किंग के बारे में बताया है.
सिक्स्थ पैरा में एक एवोल्यूशन के बारे में बताया कि डॉक्टर्स ने हार्ट की सर्जरी को स्टार्ट किया। सेवन्थ पैरा में पेस मेकर के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से। ओके, सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड दिस पैसेज. Okay, now after reading the passage, we have these questions. On the basis of your reading of the above passage, make notes on it using headlines, headings and subheadings, also recognizable abbreviations wherever necessary, minimum 4. Use a format you consider suitable, supply an appropriate title to it. Okay, write a summary of the above passage in about 80 words. अब हमें क्या करना है, हमने जो भी रीडिंग करी है उसकी हमने टाइटल, हेडिंग और सब हेडिंग्स देनी है, ठीक है। और उन टाइटल, हेडिंग, इस पैराग्राफ में से हमने कुछ एब्रीविएशंस भी बनाने हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे लास्ट में अगर मैं देखूँ हार्ट लंग मशीन लिखा है, हार्ट लंग मशीन को, इसको हम HL मशीन लिख सकते हैं, राइट को RT लिख सकते हैं, लेफ़्ट को LT लिख सकते हैं। ओके, ऑक्सीजन को O लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिख सकते हैं, एक्यूमुलेटेड को EQ लिख के इसको एब्रीविएशन बना सकते हैं, टेम्परेली को TMP करके हम इसकी एब्रीविएशन बना सकते हैं, मिनट्स की MIN करके हम इसकी एब्रीविएशन बना सकते हैं। तो हमें अपने माइंड में सोच लेना है कि हमें किस किस की एब्रीविएशन बनानी है। ओके, ये करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। Sorry for the disturbance. Now let me show how to make note making. So हमें सबसे पहले पता चल गया था कि टाइटल जो है हमारा किसके बारे में है, हार्ट, ठीक है ना, इट्स अबाउट हार्ट एंड इट्स वर्किंग। सो आई एम गिविंग दिस हेडिंग हार्ट्स वर्किंग, ठीक है। अब ये हमारा टाइटल है, अब मैं इसमें हेडिंग दे रही हूँ जो हमने पैराग्राफ्स पढ़े हैं, जो फर्स्ट लाइन है, हार्ट्स वर्क कैन नेवर बी इंटरप्टेड, तो मैं इसको फर्स्ट दे रही हूँ हार्ट नेवर रेस्ट, यानी कि ये कभी रेस्ट नहीं करता। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, अब मैं इसकी सब हेडिंग्स दूंगी। ये टाइटल दिया मैंने, ये हेडिंग दी, अब मैं सब हेडिंग्स दे रही हूँ पे हार्ट नेवर रेस्ट के बाद। फर्स्ट लाइन है फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकेंड लाइन सॉरी, द हार्ट जॉब इज़ टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ऑक्सीजन, तो मैं ऑक्सीजन रिच ब्लड flowing through the body, this is our first sub point, ठीक है। now second, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ब्रेन सेल्स के बारे में, लिव ओनली फॉर 5 मिनट्स की मैंने एब्रीविएशन दी है। एब्रीविएशन को मैं हर पैराग्राफ के साथ नहीं दूंगी, बाद में दूंगी। थर्ड पॉइंट में देख रही हूँ सेकेंड पैराग्राफ में, द हार्ट इज़ स्पेशलाइज्ड मसल दैट सर्व एज अ पंप, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हार्ट serves as a pump. I am just hoping that my writing is eligible to you. Okay. ऊपर वाले 3 पैराग्राफ जो है वो बहुत छोटे हैं, तो मैं उन सबको एक ही हेडिंग के अंदर कवर कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ ईच सर्किट वीन्स कैरी द ब्लड टू द राइट एट्रियम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वीन्स कैरी ब्लड, राइट के लिए मैं RT यूज़ कर रही हूँ, एट्रियम। देन its oxygen has been used up and it is on its way to the lungs to pick up a fresh supply and to give the carbon dioxide it has accumulated. So
नेक्स्ट पॉइंट लिख रही हूँ मैं, लंग्स, इस लाइन का मीनिंग है लंग्स गिव्स फ्रेश, सॉरी ऑक्सीजन का ओ लिखना था हमने, ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, सो फर्स्ट 3 पैराज जो हैं वो हमारे कवर हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट 4th पैरा जो कि थोड़ा सा लॉन्ग है उसके लिए मैं नेक्स्ट हेडिंग सोचूंगी। पैराग्राफ है हमारा, फ्रॉम द राइट एट्रियम द ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्राइक्यूस्पिड वाल्व इनटू द सेकंड चैम्बर द राइट वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट्स। ये टोटल एक कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग जो है यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो के बारे में है कि ब्लड किस तरीके से ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होकर किस तरीके से फ्लो कर रही है। तो मैं इसको यहाँ पे हेडिंग दे सकती हूँ, ब्लड सप्लाई। ठीक है, अब मैं इसकी फिर से सब हेडिंग देना शुरू करूँगी। लाइक राइट एट्रियम से कहाँ जा रहा है ब्लड, फर्स्ट लाइन आप पढ़ेंगे, फ्रॉम द राइट एट्रियम द ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, राइट एट्रियम टू ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। ओके, सेकेंड, हर पैराग्राफ में से बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं बनाएंगे आप, मिनिमम 3 मान के चलो, मैक्सिमम 6 मान के चलो, इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं बनाएंगे, फिर वो बहुत ज़्यादा हौच पौच वाला सिचुएशन हो जाती है। थोड़ा सा इसको क्लियर ही रहने देंगे। नाउ द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन इट इज़ फिल्ड पुशिंग द ब्लड, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट pushing blood to pulmonary artery, right ventricle contract pushing blood to pulmonary artery को भी आप एब्रीवेशन बना सकते हो, मैंने यहाँ पे पल्मोनरी का PUL लिख लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी मैं यहाँ पे इसको पॉज कर रही हूँ क्योंकि ये 7 मिनट एक्सीड कर चुके हैं ये वीडियो। येस, सो अगेन आई वॉज टेलिंग यू हाउ टू मेक पॉइंट्स। नाउ इतना करने के बाद आई होप दैट यू आर गेटिंग समथिंग, नाउ यू आर एबल टू मेक पॉइंट्स। ठीक है, टेकिंग फ्रॉम द पैरा। अब 6th पैराग्राफ में हम देखेंगे, मैं 6th पैराग्राफ को फिर से न्यू हेडिंग दूंगी क्योंकि 6th पैराग्राफ में एक सर्जरी इवोल्यूशन के बारे में बताया है, क्योंकि बिफोर दिस डॉक्टर्स ने कभी हार्ट को टच नहीं किया था। तो मैं इसको यहाँ पे 7 दूंगी, like until the 20th century doctors didn't care to touch the heart. Okay, 1953 evolution in heart surgery, मैं इसको ये हेडिंग दे रही हूँ। ठीक है, अब इसकी सब हेडिंग्स फिर से आएंगी। फिर इसमें सबसे पहला पॉइंट यही ले रही हूँ कि डॉक्टर जॉन गिबन developed a machine which could take over temporarily heart। ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आप चाहें अगर यू कैन डू तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे हम, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ये दोनों चीज़ों को एडजस्ट करने में, बट मैं ये चाहती हूँ कि आपको समझ में आए कि करना क्या है। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है, द हार्ट सो दैट सर्जन्स कुड वर्क इनसाइड। अब इसमें क्या हुआ, ये जो मशीन थी हार्ट सर्जरी करते टाइम, ये थोड़ी देर के लिए एक आर्टिफिशियल हार्ट की तरह काम कर सकती थी, तो सर्जन्स को टाइम मिला था सो दैट दे कैन वर्क इनसाइड एंड सी व्हाट दे वर डूइंग, वो हार्ट के अंदर वर्क कर सकते थे ना। तो फिर सर्जन्स गॉट टाइम टू वर्क इनसाइड, सॉरी आई एम राइटिंग हियर इनसाइड हार्ट। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसका मैं बना रही हूँ, ये लिखा हुआ है द एरा ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी बिगन, एरा ऑफ, अब ओपन हार्ट सर्जरी
इसका भी मैंने एब्रीवेशन बना ली। ओके, सो मैं ये समझती हूँ कि ये जो 3-4 चीज़ें मैंने पैराग्राफ को आपको बताया है आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे उन एब्रीवेशंस को देखूँगी। अब मैं यहाँ पे हेडिंग डालूँगी एब्रीविएशंस यूज्ड, यानी कि हमने कौन कौन सी एब्रीवेशन यूज़ की हैं, और मैं उसको पेंसिल से एक बॉक्स में डाल दूँगी। तो हमने राइट ऑक्सीजन के लिए किया था, हमने ओ यूज़ किया था, मैं यहाँ पे इसको ऑक्सीजन बताऊँगी। RT यूज़ किया था राइट के लिए, ठीक है। LT यूज़ किया था लेफ़्ट के लिए। देन और क्या यूज़ किया था, पल्मनरी, हाँ पल यूज़ किया था, पल्मनरी। ओके, मेरी वर्डिंग्स पे, मेरी वोकल पे ज़्यादा ध्यान देना, मेरी राइटिंग पर नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं ऐसे देख के लिख ही नहीं पा रही हूँ इसमें, ठीक है। इसके बाद ओपन हार्ट सर्जरी, OH ओपन हार्ट सर्जरी। नाउ आई कैन अश्योर यू, अगर आप इतना करते हो ना, ये आपका 8 मार्क्स का है, आपके 4 मार्क्स इस पोर्शन में कहीं नहीं गए, ठीक है ना। आई कैन गिव यू दैट गारंटी, अगर आप इस तरीके से चलते हो ना ये पढ़ के, क्योंकि मैंने ये आपके सामने ही पैराग्राफ पढ़ा और मैंने आपको ये नोट मेकिंग करके दिखाई है। प्लीज़, अच्छा एक चीज़ और जो मैंने गलती की है वो आप ना करें। देखो ये एक तो बहुत ज़्यादा रफ है, ये एक लाइन में आना चाहिए सब कुछ, ये समझो कि आपकी जो सिमेट्री है ना ये बिगड़नी नहीं चाहिए। ये टाइटल भी ना इस तरफ आना चाहिए, ठीक है। एब्रीवेशंस भी अगर आपने यहाँ पे किए हैं तो एब्रीवेशंस नहीं तो आपकी शीट के अकॉर्डिंग आप साइड में भी दे सकते हो। इसके बाद आपकी समरी जो है ना, समरी के लिए आप क्या करते हैं ना, पूरा का पूरा पैसेज उठा के लिख देते हैं। आपको समरी के लिए आप पैसेज को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नोट्स को देखो कि आपने कौन से नोट्स बनाए हैं। ओके, नेक्स्ट जो इसकी वीडियो कंटिन्यूटी मैं करती हूँ उसमें बताती हूँ कि किस तरीके से पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं उनको पढ़ करके आपने समरी बनानी है, जो विच शुड नॉट एक्सीड मोर देन 4 लाइन्स। ओके, yes, so let's see what points we made. टाइटल था हार्ट्स वर्किंग। पॉइंट्स हमारे, हार्ट नेवर रेस्ट, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, ब्रेन सेल्स लिव ओनली फॉर 5 minutes, हार्ट सर्व्स एज अ पंप, veins carry blood right atrium, lungs grip fresh oxygen supply, blood supply right atrium to tricuspid valve, right atrium, right ventricle contract, pushing blood to pulmonary artery, है ना। हमने ये सारे पॉइंट्स लिखे थे। अब मैं जो इसकी समरी बनाऊंगी वो इसी तरीके से बनाऊंगी कि ये पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो जाए। मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगी। इसका टाइटल सेम रहेगा, सेम, हार्ट्स वर्किंग, हार्ट नेवर रेस्ट। ओके, फर्स्ट लाइन, इट सप्लाई, यहाँ पे आप एब्रीविएशन यूज़ नहीं करेंगे, ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ब्लड बॉडी। फिर हम ब्रेन सेल्स वाली लाइन लिखेंगे, ब्रेन सेल्स लिव ओनली फॉर 4 to 5 minutes. Then heart serves as a pump, our heart serves as a pump. Then our veins carries, मुझसे ना कैमरा होल्ड करके पकड़ा, लिखा नहीं जा रहा, ब्लड टू राइट एट्रियम, लाइक दिस। मैं आपको सिर्फ समझाना चाहती थी और मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादातर तो लोग आप समझ ही गए होंगे कि ये सारे पॉइंट्स को अब हमने कंबाइन करके अपनी समरी में लिख देना है, एंड दैट इज़ सफिशिएंट, एंड योर 8 मार्क्स आर विद इन योर हैंड्स, ठीक है। वो कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इस तरीके से करोगे। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ आपको ये वीडियो देखनी है, समझने की कोशिश करो। अगर समझ, अभी कोई चांस नहीं है कि आपको समझ नहीं आता, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो प्लीज़ मेक अ कॉल, ठीक है। थैंक यू।